हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आशा करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस आवर मॉड्यूल बी यूनिट नंबर 13, which is all about preparation of final accounts. Okay, so in our previous session we already done with the balance sheet equation. I hope आप लोगों ने ये सेशन देख लिया होगा, ठीक है। So today we are going to practice preparation of final accounts. That means if you talk about the preparation of final account of a joint stock company, so it will include like first we will prepare trading account from our trial balance. Then we will prepare the next step is your profit and loss account, and then finally balance sheet equation. Okay, so the course content of this particular unit is like we have basic introduction, preparation of trial balance, this we have already done, so we'll not spend time here again. Then adjustment entries, preparation of final statement from trial balance, so which include trading account, then profit and loss, and then balance sheet. Okay, so first, before starting this particular one, I'll quickly revise you through the entire journey of accounting, right? So how we start? Like first, we generally create the journal entries. So journal entries are basically these are chronological in order, date-wise, amount-wise entries. So anything which can be measured into money, so that will be part of your journal entries. So account wise, we follow the rules, real account, nominal and personal accounts, and we do these particular entries. ठीक है, जर्नल एंट्रीज आपका सबसे पहली एंट्री होती है, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उनको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज लेजर, ठीक है। सो वी प्रिपेयर लेजर, डिफरेंट डिफरेंट लेजर। ओके, सो लेट्स से लाइक जो जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं उनको उनके इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर हम लोग आपका शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। So that is generally part of ledger. Like we have separate sales ledger, purchase ledger, capital, cash, rent, आपका XYZ। तो जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट हमारे डील होते हैं, they are generally part of the ledger. From ledger we prepared the next one is trial balance, ठीक है। ये हमने मॉड्यूल ए के अंदर पढ़े थे सारे, ठीक है। So trial balance is a kind of summary of all the ledger accounts. It is simply defined as summary of all the ledger account. That means like the format was like particulars, then we have ledger folio, then we have debit side, and we have credit side, ठीक है। So as per rule, the total of debit and credit should be equal, ठीक है। So then only we will achieve the arithmetical accuracy because we are following dual aspect of accountancy. तो ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर किया आपका, ठीक है, यहां तक हमने समझा था। नाउ फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस फर्स्ट वी विल प्रिपेयर दी ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो आज का जो जर्नी होगा, ठीक है, सो नाउ द वेरी फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट्स जिससे हमें क्या पता चलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉसेस। देन वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, net profit and net losses, and the final net profit and net losses we will transfer to balance sheet. Okay, so balance sheet आपका जो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। So these are the three major areas around which this unit number 13 जहां पे आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इन्हीं के अराउंड आपका बात करेंगे, अज्यूमिंग कि ट्रायल बैलेंस वाला जो पोर्शन है वो आपका क्लियर है, ठीक है। सो अब देखो लाइक अगर हम लोग स्टेटमेंट्स की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट विच इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ट्रेडिंग अकाउंट जहां से हमें क्या पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट, एंड वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां से हमें क्या पता चलता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। पोजीशन स्टेटमेंट विच इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट से हमें आपका जो कंपनी की करंट पोजीशन है लाइक द एसेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, सो इक्वेशन वाज एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, जो हमने अपने पिछले ही सेशन के अंदर आपका डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आपका बेस था। नाउ वन बाय वन आई विल शो यू द फॉर्मेट आल्सो। तो वेरी फर्स्ट वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2024 अज्यूमिंग, ठीक है। सो लाइक जैसे एक चीज हमें पता है कि फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट्स वी गेट टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है। सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट?
सो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉसेस, ठीक है। अब यहां से हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हाउ यू कैलकुलेट नेट सेल्स, ठीक है। सो नेट सेल्स कैसे आप लोग निकालेंगे, ठीक है। नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स मींस ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। सो ये आपका बेसिक ग्रॉस सेल्स कैसे निकलेगा, आपका सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। सेल्स रिटर्न, अगर कोई ऐसी सेल्स जैसे हमने 10 लाख रुपए का सेल्स किया जिसमें से 1 लाख का जो पीस डिफेक्टिव था वो वापस आ गया, सो योर नेट सेल्स इज 9 लाख रुपीस, ठीक है। दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वन। तो ये कुछ चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है जहां से आप ट्रेडिंग अकाउंट को समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोग बात करें, देन आपका टू परचेज, आपका परचेज रिटर्न, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, देन वी हैव कैरेज डॉक चार्जेस, वेजेस टू ड्यूटी, फ्रेट, आपका क्लियरिंग चार्जेस, अदर चार्जेस, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, दिस, ठीक है। तो ये these all are generally part of your cost of goods sold and these all are direct expenses, ठीक है। direct expenses toward the production of that particular good or services, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस मार्कर को प्रोड्यूस करें तो इसमें जितने भी सारे परचेज मीन्स आपका रॉ मटेरियल एंड ऑल, सो ये सब आपका इसमें रहेगा, ठीक है। एक फॉर्मेट आपका, और जैसे इधर साइड अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज आपका सेल्स वाला पोर्शन को अगर हम देखें तो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ग्रॉस लॉसेस, अगर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, ग्रॉस लॉस कब होगा, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये वाला पोर्शन ज्यादा होता है सो दैट मीन इट विल बी अ ग्रॉस लॉस, ठीक है। लेट्स से द टोटल ऑफ दिस इज 1 करोड़, ठीक है। आपका ये 1 करोड़ है और द टोटल ऑफ दिस पर्टिकुलर वन इज सपोज दैट 1.5 करोड़ है, ठीक है। दैट मीन्स इट्स अ प्रॉफिट सिचुएशन। हमारा प्रॉफिट मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने का होगा, 50 लैक्स का, ठीक है। क्यों, और हम वो 50 लैक्स आपका कहां पे रखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड 50 लाख यहाँ पे आएगा। अगर ये रिवर्स सिचुएशन होता, ये 1.5 करोड़ ये आपका 1 करोड़ होता, तो इट्स अ लॉस सिचुएशन। सो हम लोग आपका बाय ग्रॉस लॉस यहाँ पे रखेंगे। अब ये जो चीज है ना, जैसे अगर हमारा ये सिचुएशन है, प्रॉफिट का सिचुएशन है, while you prepare your profit and loss account, this will be your very first entry, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, पहला एंट्री आपका क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्स्ट एंट्री विल बी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट 50 लाख रुपीस। तो आपका उस पोर्शन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द second one is your profit and loss account, ठीक है। so if you talk about the profit and loss account, so with the help of profit and loss account we get to know about the net profit। इससे हमें क्या पता चलता है, net profit आपका पता चलता है, ठीक है। and how we calculate net profit, so net profit is equal to gross profit plus आपका कोई अदर इनकम है, ठीक है। सो इफ देयर इज एनी अदर इनकम, ठीक है, जैसे हमारे को जो प्रॉफिट हुआ था वो 50 लाख का है, अदर इनकम लाइक डिविडेंड रिसीव, आपका कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, वो सारी चीजें माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, तो दीज ऑल आर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको हम लोग आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में भी जानते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इन स्लाइड ऑल्सो, राइट। तो अब अगर हम लोग ग्रॉस नेट प्रॉफिट को देखते हैं, जैसे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड ओवर, ठीक है, जो 50 लाख वहां से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था, दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा इफ यू हैव सम अदर इनकम, सो उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। दूसरी तरफ आपका दिस इज अ डेबिट साइड, ठीक है, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आपका जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, टेलीफोन चार्जेस हैं, ठीक है, कन्वीनियंस चार्ज है आपका, डेप्रीशिएशन आपका, ये ध्यान रखें, ठीक है, डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इट इज चार्ज ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ऑफिस चार्जेस हैं, अदर चार्जेस आपके हैं, ठीक है, टैक्सेस आपका। तो ये, तो अब लेट्स से अज्यूम कि हम सेम केस में आपका चल रहे हैं, ठीक है, एंड
our gross profit from trading account was 50 lakh and the total of this particular expense is supposed at 30 lakhs. ठीक है, तो that means we made a net profit of 20 lakhs. तो हम क्या करेंगे, net profit आपका 20 lakhs and this will get transferred to your reserve and surplus in balance sheet. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से जो आपको इसको ध्यान रखना है. एंड फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम जैसे मैंने आपको बताया, तो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी ये सारे हैं वो इस तरीके से आपको रहेंगे. सो व्हाट कम्स अंडर द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, एक यहाँ पे इमेज आपके लिए रखा है जो आपको और ज्यादा क्लैरिटी, और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्रेडिट साइड ऑफ दी आइटम्स क्या क्या रहेंगे. ठीक है, जैसे बैलेंसेस सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व, इनकम टैक्स प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड और एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक. ठीक है, सो दीज आर द क्रेडिट साइड एंट्रीज. डेबिट साइड में आपका ट्रांसफर टू रिजर्व एंड जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन, transfer to dividend or this dividend distribution tax, income tax for previous years, surplus transfer to balance sheet आपका. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो आपको कहीं ना कहीं जो फॉर्मेटिंग है वो देखने के लिए मिलेगी. देन फाइनली वी कम टू द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में आपका ये फॉर्मेट रहेगा. ठीक है, सो द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कैन बी यूज्ड. ठीक है, इस तरीके से आपका मतलब एक साइड आपका एसेट्स, दूसरी साइड आपका लाइबिलिटीज. ठीक है, सो जहां पे अगर हम लोग बात करें, सो कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, इनका टोटल शुड बी इक्वल टू आपका एसेट्स आपका जैसे नॉन करेंट एसेट सबसे पहले, देन कैश, देन स्टॉक, रिसीवेबल्स, इनका टोटल. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए फॉर्मेट. बैंकिंग कंपनी के लिए हमने समझा था कि आपका जो सेक्शन 29 है उसके अकॉर्डिंग्स हमें फॉलो करना होता है. एंड यू हैव टू like while banking company they'll prepare their final accounts, they have to follow that format, like form A performa balance sheet, form B performa profit and loss account. So in total we have 18 schedules. Out of this 12 schedules belongs to your balance sheet and 6 schedule including note to accounts that belongs to your profit and loss account. ठीक है, तो sequence wise आपका जो वहां पे जाएगा. We will have a dedicated session on दिस फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी. ठीक है, तो उस पर हम इनको आपका डिटेल में समझेंगे. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं किस टाइप के ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे. ये जो सेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ओवरऑल फाइनल अकाउंट्स का जो जर्नी है वो यहाँ से आपका बनता है और ये चीजें आने वाले समय में आपको यूज होते हुए दिखेंगी. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस. An organization prepare profit and loss account to ascertain. तो profit and loss account को बनाने के पीछे का जो reason होता है, what is the reason behind that one? To know the net profit or losses of this particular one. ठीक है, so आपका and how we prepare our profit and loss account. So how we get to know about this net profit or losses? So it is आपका gross profit plus other income. ठीक है, other income अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है, अदर इनकम माइनस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो दिस इज द फॉर्मूला जो जिसको आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द एक्रूअल सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग. इट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट and other operating income are credited and all operating expenses are debited. ठीक है, if the gross profit surplus operating income is more than the total operating expense, then the residual amount will be called as net profit, otherwise it is loss. जैसे हमने अभी कुछ देर पहले उस फॉर्मेट के साथ उसको समझा था. ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, अभी हमने इसको समझा था. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे, इन जनरल हम लोग इसको क्या बोलते हैं आपका जैसे हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, तो कई बार आपको ये फॉर्मूला कैसे भी मिलेगा कि आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका प्लस योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस तरीके से भी आपका. ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए. सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, नो माइनस नहीं होगा. ठीक है, प्लस नहीं होगा, सॉरी. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज परचेज प्लस ऑपरेटिंग स्पेंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक
हाँ ना, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस ऑपरेटिंग स्टेक माइनस दिस, तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो ऐसे छोटा सा एक माइनस प्लस का डिफरेंस था एंड इट्स अ हाफ मार्क्स क्वेश्चन। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको या तो ऐसे फॉर्मूला पूछेगा या इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल, अगर वो न्यूमेरिकल भी देगा ना तो इन्हीं के अराउंड आपको देगा, आपको वो परचेज दे देगा, ओपनिंग स्टॉक दे देगा, या इस तरीके से वी विल प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The following information is given about the XYZ company. Opening stock is 2 lakh, sales is 2 lakh 50,000, purchase is 1 lakh 50,000, closing stock is 3 lakh and expenses are 20,000, ठीक है। So calculate net profit loss that is to be carried to the balance sheet as on 31st March 2024। ये बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, अब आपको नेट प्रॉफिट वाला, ठीक है। सो हमारा ओपनिंग स्टॉक है कितना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक आपका 2 लाख, ठीक है, ये मतलब जो क्रेडिट साइड है 2 लाख, सेल्स आपका 2 लाख, सो आपका 2 लाख 50,000, ठीक है। परचेज हमारा है कितना 1 लाख 50,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपका है कितना 3 लाख। तो दिस आपका अगर हम लोग क्रेडिट साइड की बात करें, सेल्स एंड दिस, ठीक है, आपका ओपनिंग स्टॉक तो कितना हो गया 4,50,000, ठीक है। परचेज इन सबका टोटल इज 3 लाख, 3 लाख 4,50,000, 4,70,000, 4,70,000। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ 2 लाख परचेजेस, calculate the net profit losses carried for the balance sheet. So अच्छा, हमें नेट प्रॉफिट बनाना है तो 2,50,000, 5,50,000 और 1,80,000 प्रॉफिट, 1,80,000 प्रॉफिट शुड बी आंसर इसमें है, यस हाँ। तो डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, हाँ यस, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जैसे एंट्रीज आपको दे रखी है, ठीक है। तो परचेज ओपनिंग स्टॉक आपका 2 लाख, देन आपका परचेज इज 1,50,000, ठीक है, एंड वी हैव एक्सपेंसेस आपका 20,000। बट इधर साइड अगर हम लोग देखते हैं 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 10, तो इन दोनों का टोटल इज लाइक 5,50,000 माइनस आपका आपका 3,70,000, तो जो डिफरेंस है आपका 1,80,000, दैट इज योर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपका जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको जो कई बार वो न्यूमेरिकली आपका देखने के लिए मिल सकते हैं और बहुत बेसिक है, अगर आपने वो पिछला जो कॉन्सेप्ट वाइज जो चीजें हैं वो समझ में आई है तो आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, which of the following item should be classified as reserve and surplus, तो इनमें से कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट नो, प्रोविजन नो, सिक्योरिटी प्रीमियम यस, बिल्स पेबल्स नो, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका विच इज पार्ट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे किसी कंपनी ने आपका शेयर्स इश्यू किया, ठीक है, लेट्स से दे कम अप विद XYZ कंपनी, दे कम अप विद द शेयर्स वर्थ ₹100, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू इज 10। तो ये जो 90 रुपीज है ना, दिस इज काइंड ऑफ अर्निंग ऑफ द प्रोमोटर्स, ठीक है। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पार्ट होगा किसका, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। So securities premium is a reserve representing the excess amount received over the face value, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे समझा, this is the offer price, आपका face value 10, 90 rupee was the securities premium in this particular case, ठीक है, and is shown under reserve and surplus in the balance sheet. uh, other options are liabilities, ठीक है। चलो अगला, depreciation appearing in the trial balance should be, so depreciation appearing in trial balance should be, so ये आपका कहाँ पे आता है, depreciation is an operating expense and we generally accounted in our प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, तो डिडक्टेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एसेट इन द बैलेंस शीट ओनली, ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं, ठीक है। शोन एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। बोथ इन प्रॉफिट एंड नो, इग्नोर नो, ठीक है। तो क्या होगा हमारा आंसर, बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो बैलेंस शीट, सॉरी, जो आपका डेप्रिसिएशन है दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड वी जनरली
डिडक्ट दिस पर्टिकुलर वन और वी जनरली शो दिस पर्टिकुलर वन इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड में आपका उसमें जो रहता है, ठीक है. सो व्हेन डेप्रिसिएशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस इट इज considered already adjusted and it should be shown as an expense in profit and loss account, ठीक है, indirect expense की तरफ. Which of the following statement provide a snapshot of entity's financial position at a specific time? So position statement कौन सी होती है? Balance sheet, ठीक है. So balance sheet is a position statement which generally represent the company's assets, liabilities and equity, ठीक है. And कहीं ना कहीं जो कंपनी के द्वारा पूरे साल भर में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज किए गए हैं, बाई सेल एक्टिविटीज किए गए हैं, तो उसका आउटकम क्या रहा है हमारी जो फाइनल पोजीशन स्टेट में, उनसे एसेट इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, लाइबिलिटी इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, या इक्विटी में क्या चेंजेस हुए, ठीक है. नेक्स्ट वन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज determine tax liability, no, assess the financial performance and position of the business. Financial performance means आपका net profit or losses, ठीक है, which you'll get through profit and loss account, and position is related to balance sheet, ठीक है, ये किससे related है आपका balance sheet से. So B will be correct answer for this particular one. Next one, if opening stock is 50,000, purchase is 1,20,000, direct expenses 30,000, closing stock is 40,000. So what is cost of goods sold? निकल जाएगा, ठीक है. So cost of goods sold is equal to opening stock plus purchase, ठीक है, माइनस आपका closing stock plus direct expenses, ठीक है, expenses. Now if you put these particular numbers, ठीक है, so आपका क्या होगा, opening stock 50,000, purchase 1 lakh, मतलब this plus this is like 1,50,000, ठीक है, 1.50 lakh माइनस आपका closing stock 40,000 प्लस एक्सपेंसेस आपका 70,000, ठीक है, 70,000. तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1,50,000 एंड 70,000, ठीक है. सो इट इज, हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, आपका 1,20,000, देन आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल एडेड, सॉरी हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं, ठीक है, ये आपका ऐड होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,80,000 और ये कितना है आपका 40,000, तो ये होगा 1.40 लाख, ठीक है. सो 1.40, हाँ, सो डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग इसको आपका निकाल सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन, अ कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सो आपका सेल्स माइनस परचेज नहीं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, सो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, सो सेल्स मींस नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है. नेक्स्ट वन, which of the following is subtracted from the gross profit arrive at the which of the following subtracted from the gross profit to arrive at the net profit? तो हम क्या माइनस करते हैं आपका, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ठीक है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, यस, ठीक है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रहेगा, ठीक है. रेवेन्यू फ्रॉम अदर, नो, इट विल एडेड, ठीक है. डिस्काउंट रिसीट, इट विल एडेड, तो ये दोनों ऐड होंगे, ये आपका माइनस होगा. सो ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, सिंपल. नेक्स्ट वन, which of the following item is shown under other income of profit and loss account? तो इनमें से कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अदर इनकम में आपका शो करेगा? इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नो. सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शोन अदर इनकम, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू नो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नो, ये तो रहेगा ही नहीं, ठीक है. डायरेक्ट वेजेस आपका नहीं रहेगा, हाँ ओके. इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी राइट आंसर, ठीक है. सो अदर इनकम इंक्लूड अर्निंग नॉट रिलेटेड टू कोर बिजनेस ऑपरेशन सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड कमीशन रिसीव, ठीक है, तो ये सब आपका जो अदर इनकम हेड के अंदर रहेंगे, ठीक है. हाउ कैन वी कैटेगराइज ट्रेडमार्क एज एन एसेट? तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, तो ये क्या है आपका एक इंटेंजिबल एसेट है विच वी कैन टच और फील, ठीक है. So
Trademark is an asset which is not tangible, but it has the value in the open market. It has no physical existence, but it has value. Hence, it is shown as intangible asset. The assets are further categorized between two parts: tangible, property, plants, equipments; intangible, आपका goodwill, patent, copyright, trademarks. So these all are intangible assets. Which of the following financial statement will show the gross profit? तो gross profit कौन बताता है आपको? Trading account. And how you calculate this one? आपका gross profit is equal to net sales minus direct cost of goods sold. ठीक है? Next one, expenditure which occur on a repeated basis or frequently in business and incur to maintain regular functioning of the business. ये हमने आपका मॉड्यूल ए में भी पढ़ा है, कैपिटल इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. सो इट विल बी पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो which generally we these are the expenses related to day-to-day operations of the business itself. ठीक है. So expenditure occur on repeated like salary, rent, utility, electricity bills and all. ठीक है. So C will be right answer for this one. Revenue expenditure. I hope you remember this particular thing. Next one, guys. An accountant of a partnership firm where should I enter the closing stock of 1 lakh in the financial statement. So closing stock of 1 lakh. ठीक है. तो closing stock आपका किस में हम लोग शो करेंगे? ठीक है. So it will be part of your balance sheet as well as trading account. ठीक है. So she should be right answer for this one. The credit side of the trading account. ठीक है. As well as asset side of the balance sheet heading the current asset. ठीक है. तो ये आपका, तो हम लोग इसको दो जगह आपका बैलेंस शीट आपका जिसमें एसेट साइड में एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में. ठीक है. इन अकाउंट्स all adjustment have dual effect as per the double entry system. Next one, which term refer to the money invested by promoters in the business entity? याद है आपको entity concept. ठीक है. So we have discussed that business entity concept. So money contributed by owners is liability on the firm. ठीक है. So it is kind of like as per business entity concept. So business is a separate economic unit which is created by law. Law is आपका कंपनीज एक्ट. ठीक है. सो अब यहाँ पे हम लोग उसको किस तरीके से लेके चलते हैं? लेट्स से दिस मिस्टर एक्स हु स्टार्टेड अ बिजनेस विद 5 करोड़ रुपीज. दिस 5 करोड़ रुपीज इज जनरली नोन एज रिस्क कैपिटल. हम इसको कैपिटल बोलते हैं, बट इस कैपिटल पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है. ठीक है. It is generally known as risk capital. So what will be our correct answer? B will be right answer for this particular question. Okay. So in accounting, a business entity is considered separate from the owners or promoters. The money invested by the promoters in business is referred as risk capital. Okay. The capital represent the funds that the promoters are willing to risk in business venture. It signifies their ownership stake and interest in the सक्सेस ऑफ द बिजनेस. ठीक है. सो मीन्स जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक्स स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर बिजनेस विद द 5 करोड़ रुपीज. तो दैट इज ही इन्वेस्टेड एज अ रिस्क कैपिटल. अब उसका जो रिटर्न होगा वो इसको बिलोंग करेगा. अगर वो जीरो हो जाता है तो वो उसका नुकसान होगा. ठीक है. ही विल नॉट गेट एनी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न लाइक 10%, 5% इन ऑल. ठीक है. अगला, employee benefit provision like gratuity, provident funds shown in note to accounts under which of the following head? ठीक है. So non-current liabilities, long-term provisions. ठीक है. So it will be current liabilities, uh, employee benefit provision like gratuity, provident fund. ठीक है. Non-current liabilities, long-term provisions. B should be right answer. ठीक है. long-term provision. ठीक है. ये तो सही है. ठीक है. head divided between two. ठीक है. employee benefit provision like gratuity, this. Other provision आपका, ठीक है, the nature of long-term provision also known as long-term liabilities. ठीक है. तो हमारा आंसर जो था बिल्कुल सही था. ठीक है. non-current liabilities आपका दूसरा, इट इज पार्ट ऑफ, ये -1 नहीं है. ठीक है. लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका. ठीक है. सो इट्स अ केस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ग्रेजुटी एंड ऑल दीज पर्टिकुलर. ठीक है. सो रेफर टू अकाउंट सेट असाइड बाय द कंपनी, टू अमाउंट सेट असाइड बाय द कंपनी to cover the future obligation of or expenses of the expected to occur beyond the next 12 months. ठीक है. next one, which of the following is not recorded in trading account? तो इनमें से कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होता है? ठीक है. carries inward okay
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिकॉर्डेड, सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है। कैरीज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, जब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो उस समय आपका ये लग रहा है, ठीक है, तो इट विल बी पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। परचेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओपनिंग स्टॉक वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रहता है, ठीक है। सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मतलब जो अकाउंटेंट हैं या अदर्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के प्रोडक्शन में, ठीक है। सो उसकी मतलब जैसे अगर हम ये मार्कर बना रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, जैसे रॉ मटेरियल है, अब हमने परचेज किया तो इनवर्ड जो आपका लगा है, अगर आउटवर्ड होता तो इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखें, छोटा सा डिफरेंस है। आउटवर्ड जो पार्ट होगा किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब जो लेबर यहाँ पे काम कर रही है दे विल बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट जो लेबर इसको मार्केट में सेल कर रही है दे विल बी पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। So salaries, administrative salaries are indirect expense and are recorded in profit and loss account, not in trading. Profit and loss account के debit side में हम लोग इनको रखते हैं, ठीक है। The formula to calculate gross profit कैसे हम लोग निकालते हैं, gross profit is equal to net sales minus cost of goods sold, ठीक है। तो नेट सेल्स माइनस, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कर रखा है, नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो नेट सेल्स तो हर जगह कॉमन है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, पहला ही सही है, ठीक है। आपका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस नो लाइक, सो फर्स्ट वन ही विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था ना इसी फॉर्मूला के अराउंड आपका, अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, तो दिस विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट आपका जैसे ओपनिंग स्टॉक जो हमने यूज किया, परचेज हमने जो और किया, ठीक है, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए जैसे हमने समझा आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जैसे लेबर चार्जेस एंड ऑल, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको हम उसमें से हटा देंगे, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना, और इसके ऊपर ना बहुत बार वो आपको या तो फॉर्मूला पूछ लेगा या फिर एक आपको न्यूमेरिकल दे देगा 1 मार्क्स के लिए, वो भी ठीक है, और आसान है, कंप्लीटली फॉर्मूला ड्रिवन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस इन अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है बताइए आप जरा, ठीक है। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये आपका इनडायरेक्ट है, ठीक है। सेल्स कमीशन इनडायरेक्ट है, फ्रेट इनवर्ट आपका, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट है। ऑफिस यूटिलिटीज आपका इनडायरेक्ट है, ठीक है, मतलब ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रहेगा, ये भी फ्रेट इनवर्ट, ठीक है, हम लोग रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो उसमें जो हमारा खर्चा हो रहा है दैट इज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन, an accountant of a business entity where will you as an accountant of a business entity where will you show capital expenditure and capital receipt in financial statement, तो ये किसका पार्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, ठीक है, सो बैलेंस शीट आपका capital expenditure and capital receipt are not related to directly core business activities, hence cannot be shown in trading and profit and loss account. These are not recorded in nature, so these are shown in the balance sheet asset side में, ठीक है। so asset side capital receipt and आपका liability side में capital expenditure, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, बेसिक है, okay, this is it. So this is all about your मॉड्यूल बी यूनिट नंबर 13, ठीक है। तो पहले 2 यूनिट आपका छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इनका जो बेसिक या जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके अराउंड भी हमने बात किया, और फिर आपका उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या जो पास्ट ईयर्स में पूछे गए थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे आपका डिस्कस किया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन सेम लाइन, ठीक है। सो वी ऑलरेडी डन विद आवर मॉड्यूल ए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, एंड डू शेयर योर फीडबैक if you're liking these kind of sessions, so tell your friends also so they can also take an advantages of these particular classes. And for mock tests you can visit my website also, ठीक है, तो वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, और फॉर पीडीएफ अगेन यू हैव टू विजिट द एप्लीकेशन ऑल्सो, ठीक है, और कुछ मतलब जो रेगुलर पीडीएफ्स होंगे सो आई विल शेयर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। इफ यू वांट कि एवरीथिंग एट वन प्लेस, सो दिस इज जो आपका एप्लीकेशन है दैट इज द बेस्ट वन, ठीक है। यू विल गेट सेम कंटेंट इन एप्लीकेशन ऑल्सो, बट दैट इज अलाइन, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। यूट्यूब में क्या होता है, आई एम डूइंग स्टफ फॉर CIB JIB एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाता है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल फिर से आपका मिलेंगे सेम टाइम 7 PM एंड वी विल प्रैक्टिस आवर नेक्स्ट यूनिट विच इज कंपनी अकाउंट 1, ठीक है। तो कल का जो सेशन होगा
कल का भी और उसके बाद का भी, देल बी लिटिल बिट लेंदी सेशन बिकॉज वहाँ पे जो कंटेंट है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कहते हैं गाइस, दिस इज इट, बाय, टेक केयर ऑल एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।